Okay, ji, so let's start lecture. So we were studying gradient descent algorithm in our last lecture. So we stopped after describing these 1, 2, 3, 4 steps of the algorithm. So I just want to uh, go through what this algorithm is. So what we are essentially doing is we are minimizing a function. So we are solving this problem argmin f of x. Okay. और f of x के ऊपर we only have one condition that its gradient exists, which we are able to compute, and its Hessian exists, which is simply n cross n matrix of your gradient. So what do we do in gradient descent? So we choose one x0 arbitrarily here. Then for every iteration, okay, before that, gradient descent is an iterative algorithm. We said that there are very few f of x for which an analytical solution might exist for finding optimal values of x. So we have to rely on iterative algorithm. So this is the standard algorithm, most widely used algorithm, which gives you an iterative solution to minima of this f of x, provided this f of x has at least two derivatives. So how do we do? We choose a direction dk. We discussed about that. This direction is not only descent direction, but also the steepest descent direction. Means whenever you will choose this direction, your gradient function will achieve the minimum bound that it can ever achieve in any direction. Then alpha k, we simply touched it that alpha k is selected using line search method. So line search methods are exact solution that provide alpha k. Or if you do not want to spend so much time in finding an exact solution to alpha k at every time step k, then you can simply choose alpha as constant at every k. Of course, it will have its own cons. Then this is the main thing that is almost common in every iterative method. So we set the next x of k plus 1 equal to current one plus alpha k. So it must be alpha k. And then descent direction dk. At the end, we have a last step. We check whether the gradient has fallen very close to 0 or not. So we check its norm. If it is close to 0 or close to a value epsilon naught, which is very small value, we terminate our algorithm and then we provide a solution x hat, which is equal to, so in this case x hat optimal will be equal to xk plus 1 if we stop. Okay, so today we will see we will actually mention some of its properties. I have uploaded a book, very brief book. Each chapter is of 6 to 7 pages. You can go through that book if you are interested in the proof of these properties. So first property of this algorithm is that direction. So what you are doing, you are actually moving in an n-dimensional space and you are searching for different points. So for example, if you are at xk plus 1, you move to xk plus 2, and then you move to xk. Suppose if you are at point xk, then you take a step to xk plus 1, and then to xk plus 2, xk plus 3, and so on. So we can show that these directions in this algorithm, this direction from xk to xk plus 1, and immediately its next direction xk plus 1 to xk plus 2, and then so on, these directions are orthogonal to each other. Means if you take a direction from xk plus 1 to xk plus 2, that will definitely be given by this difference vector, and then take just a
a previous direction, which was from xk to xk plus 1. So that will be given by this difference vector, and take their dot product, your result will be 0. ठीक है. So very simple proof. अगर आप इसमें interested हैं, go through it. It simply comes from the fact that this dk is a descent direction, steepest descent direction, and the way we have defined our directional derivatives. ठीक है. So for example, if you are in two dimensions, this is your optimal point which you are searching, x steric, and then your contour are somewhere like this. So you start from here. So this is your x0. So the step you take to x1 is this step. ठीक है. Let's suppose you took this step in steepest direction d0. Then from x1, there will be a direction d1. So it happens that that direction is orthogonal to, so this angle will be 90. And then this angle will be 90 and so on. So at the end, you will take these steps and you will reach here at your optimal point. So these directions are orthogonal. Okay, so this is first property, which is somehow not very desirable because this makes the convergence of this algorithm very slow. So what do we mean by convergence? Convergence means how many number of iterations, so how many k equal to 1, 2 till capital K, how many iterations it takes from any point x0 to reach to a terminating solution or optimal solution x steric. That is what we mean by convergence. कि आपका जो एल्गोरिदम है वो कितनी देर में कन्वर्ज होता है to its final solution. ठीक है. So due to this property, its convergence is very slow. Further, if we have, just a moment, if we have a rate of convergence, we can express it mathematically. So rate of convergence of xk, suppose you are at some point xk, k could also be 0, to its optimal point. So this rate is directly proportional to a mathematical quantity which we call condition number of matrix H, Hessian matrix, at your optimal point. ठीक है जी. ईशा कोई सवाल है इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं? जी sir, it was regarding the previous page that. जी. Yes, sir. It's a little hard if you could actually elaborate a little more on the fact कि वो क्यों हमेशा orthogonal होंगे. So we can mathematically prove it कि वो क्यों हमेशा ऑर्थोगोनल होंगी ये डायरेक्शंस. तो वो प्रूफ मैंने स्किप किया हुआ है Okay. जो You बुक said मैंने it's in the अपलोड book. की हुई. ठीक या है. इट Okay, इज इन द well, बुक. I will. 2 लाइनों का Okay. प्रूफ है. इफ यू कैन गो थ्रू इट, इफ यू हैव एन इशू आई कैन टेल यू इन ऑफिस आवर्स. Okay. ठीक Thank है. you, sir. 2 लाइनों का प्रूफ है. सिंपल डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, और हो सकता है कुछ लोगों ने सॉर्ट आउट कर भी लिया हो दिमाग में, और जो है वो सिंपली स्टीपेस्ट डिसेंट डायरेक्शन जो है उसकी प्रॉपर्टी है. So rate of convergence is proportional to Hessian of optimal point. Means this is your optimal point in n-dimensional space. Suppose the n is equal to 2. These are your contours around this point. Okay? And you start from some point xk.
Now, how many iterations you will take from this point to reach at your optimal point? That is called rate of convergence. ठीक है? Now, we can actually show that this rate of convergence is directly proportional to condition number of Hessian. पहले Hessian समझ लें कहाँ पे evaluate कर रहे हैं, फिर मैं condition number पे आता हूँ. So Hessian evaluate कर रहे हैं आप अपने optimal point के ऊपर. ठीक है, ये जो ऑप्टिमल पॉइंट है ये डिपेंड करता है कि आपका जो फंक्शन है वो किस टाइप का है. अगर ये आइसोलेटेड मिनिमा है किसी एक पॉइंट पे तो फंक्शन इसके अराउंड बड़ा वेल डिफाइंड होगा, तो देयर इज अ लार्ज प्रोबेबिलिटी कि आप इस पॉइंट तक बड़े जल्दी पहुंच जाओगे. लेकिन अगर ये पॉइंट जो है वो कहीं पे छुपा हुआ है या इसके आसपास बहुत सारे लोकल मिनिमा हैं या सैडल पॉइंट्स हैं, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप इसके अराउंड आके फंस जाओगे एंड यू विल नीड अ लॉट ऑफ इटरेशंस टू रीच टू दिस पॉइंट. ठीक है, अब इस पॉइंट के अराउंड जो सिचुएशन है वो बेसिकली आपको हेसियन बता रहा है. रिमेंबर हेसियन, अगर हम टेलर सीरीज में जाएं तो हेसियन क्या था? हेसियन आपको कनकेविटी बताता है. पहली टर्म क्या थी कि आपके फंक्शन को हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं अराउंड एनी पॉइंट यूजिंग अ कांस्टेंट वैल्यू. दूसरी टर्म थी कि हम फंक्शन में एक लीनियर ट्रेंड डाल रहे हैं. ठीक है, और तीसरी चीज थी कनकेविटी. तो हेसियन इज गोइंग टू टेल अस कि इस एक्स स्टेरिक के अराउंड जो मेरा फंक्शन है उसकी कनकेविटी क्या है, कि वो कैसे जो है इस एक्स स्टार के अराउंड बना हुआ है. अगर हेसियन जो है, अब ये तो हो गया कि हेसियन ये बताएगा, लेकिन हेसियन की कौन सी चीज बताएगी? दैट इज कॉल्ड कंडीशन नंबर. सो नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज अ कंडीशन नंबर. सो कंडीशन नंबर ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, our Hessian is always square matrix, remember. So condition number of any square matrix is defined as of any square matrix A, which is n cross n. So symbol is this small k, it is also called kappa of A. So it is given by ratio of its maximum eigenvalue to its minimum eigenvalue. स्क्वायर मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी. ठीक है, तो जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू और मिनिमम आइगन वैल्यू की रेशियो है दैट टेल्स अस कि आपका कंडीशन नंबर क्या है. लार्जर द कंडीशन नंबर, सो लार्जर, दिस सिंबल इज फॉर लार्जर. लार्जर द कंडीशन नंबर, वी से आवर मैट्रिक्स इज बैडली कंडीशनड. ठीक है, सो ए इज इल कंडीशनड. आपने ये लफ्ज सुना होगा कि इल कंडीशनिंग ऑफ ए मैट्रिक्स. Larger the condition number, more the matrix is ill conditioned. Smaller the condition number, matrix is well conditioned. ठीक है, सो ये जो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम आइगन वैल्यू है ये आपको बेसिकली बताती है इनकी रेशियो के आपका जो मैट्रिक्स है वो कितना वेल कंडीशनड है या इल कंडीशनड है. नाउ द पॉइंट इज हाउ गुड इज अ नंबर. फॉर एग्जांपल ये आपको बता देगा 10 है, 15 है, ठीक है, या जो है वो क्या कहते हैं 100 है या 1000 है या 20,000 है. रेशो है ना, रेशो तो कुछ भी हो सकती है. अच्छा, यहाँ पे हम सिमेट्रिक भी कर लेते हैं इसको ताकि हम वो हेसियन तक ही महदूद रखें. रिमेंबर हेसियन इज सिमेट्रिक, स्क्वायर एंड सिमेट्रिक. तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगी. चले मैं इसको पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कर लेता हूँ, नॉट एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो अब ये देखें कि लेट्स अप्रोच, पहले कंडीशन नंबर को समझ लें फिर उसको वापस लेके आते हैं. लेट्स अप्रोच दिस लैम्डा मिन ऑफ मैट्रिक्स टू 0. ठीक है, लैम्डा मैक्स को मैं कांस्टेंट रख देता हूँ और लैम्डा मिन जो है उसको मैं 0 की तरफ अप्रोच करता हूँ. तो उसका फर्क क्या पड़ेगा कंडीशन नंबर पे? डेफिनेटली जो आपका कंडीशन नंबर है वो इंक्रीज करेगा. ठीक है, कंडीशन नंबर आपका इंक्रीज करेगा. जब आपकी लैम्डा मिन अप्रोच कर जाएगी एग्जैक्टली 0 को, सो इफ लैम्डा मिन ऑफ ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो फिर आपका कंडीशन नंबर क्या हो जाएगा?
infinity. ठीक है, so it means कि आपका मैट्रिक्स क्या हो गया यहाँ पे? Can anyone tell me what has happened to our matrix? ill condition. So if any lambda of any matrix, square matrix, turns out to be 0, matrix is no more invertible, it becomes a singular matrix. ठीक है, तो आपका मैट्रिक्स जो है वो उसमें सिंगुलैरिटी आ गई है, वो इन्वर्टिबल नहीं रहा, इट इज हाईली इल कंडीशनड. ठीक है, तो बेसिकली जो आपका हेसियन है एट पॉइंट एक्स स्टार, वो आपको बताता है कि अगर तो ये इसका कंडीशन नंबर यहाँ पे हेसियन का बहुत ज़्यादा है, तो ये बताएगा कि आपका जो ये वाला एक्स स्टेरिक है वो यहाँ पे बड़ा बैडली प्लेस्ड है, एंड यू विल नीड अ लॉट ऑफ इटरेशंस टू रीच एट दिस पॉइंट. ठीक है, और अगर जो आपका हेसियन है वो वेरी वेल कंडीशनड है, तो आपको बताएगा कि ये पॉइंट बड़ी इजीली आप यहाँ पे पहुंच जाओगे. सो इन दैट वे रेट ऑफ कन्वर्जेंस of any point to optimal value is directly proportional to condition number. अगर आपका कंडीशन नंबर ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ पे जाने के लिए, और अगर आपका कंडीशन नंबर हेसियन का कम होगा तो कम टाइम लगेगा वहाँ पे जाने के लिए. So this ill conditioning of matrices causes a lot of problems. This is one of them. कि आपका जो सोल्यूशन है वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा. एक और जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, अब हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, दैट इज इन सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू वाई, जो कि हम काफ़ी डिटेल में देख के आए हैं. तो यहाँ पे अगर ए इल कंडीशनड है, ठीक है, इल कंडीशनड है, तो जो सोल्यूशन एक्स आप यहाँ से निकालते हैं, जो हमने देखा है, या लीस्ट स्क्वायर होगा या एक्स मिन नॉर्म होगा, जो कि आपने अपनी असाइनमेंट में भी किया, दिस सोल्यूशन इज नॉट स्टेबल. ठीक है, ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं. नॉट स्टेबल का क्या मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप पहले अगर y यूज़ कर रहे थे 1 और 0.1, ओरिजिनल y था, अगर मैं 0.1 की जगह यहाँ पे 0.001 थोड़ा सा प्रिसीजन एरर आ जाए मेरे y के अंदर, तो आपका जो x है वो एकदम से चेंज हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगी. मे बी हम इस पॉइंट को फिर किसी टाइम किसी होमवर्क या क्विज में मजीद देखेंगे कि इल कंडीशनिंग जो है वो कैसे आपके सोल्यूशन ए एक्स इज इक्वल टू वाई पे अफेक्ट करती है. ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के कई तरीके हैं कि आप इल कंडीशनिंग को कैसे जो है वो अवॉइड कर सकते हैं. यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है कि अगर मेरा हेसियन जो है वो अगर इल कंडीशनिंग की तरफ जा रहा है तो व्हाट कैन आई डू? आपके पास जो एल्गोरिदम था वो ये था, एक पॉइंट है, पहला स्टेप था x0 सिलेक्ट करो, दूसरा स्टेप था डी के सिलेक्ट करो, तीसरा स्टेप था अल्फा के सिलेक्ट करो, और ये तो सिंपल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया है. तो आपके पास बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं, इनमें से आप तीनों को या किसी एक को चेंज करके आप देख सकते हैं कि आपका जो इल कंडीशनिंग है उसको आप कैसे अवॉइड करें. So the usual approach is this dk, you do not choose it as steepest descent direction, rather you use some other direction, ठीक है, during your search process, which is modified by some positive definite matrix. Let's not go in that discussion, वो बहुत ही जो है हम ऑफ टॉपिक हो जाएंगे. बहरहाल you can avoid this ill conditioning by choosing a different type of direction instead of steepest descent direction. ठीक है, सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल बिफोर वी प्रोसीड? जी शोएब. सर ये कंडीशन नंबर का हेसियन की कॉन्केविटी से क्या रिलेशन होता है, इफ यू कुड एक्सपेंड ऑन दैट.
या तो जो आपके पास अगर आप वो टेलर सीरीज देखें ना, तो हमने उसको कैसे एक्सपेंड किया था, वी सेड के एफ ऑफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ एट पॉइंट स्टेरिक प्लस आपके पास ग्रेडियंट ऑफ एफ एट दैट पॉइंट, ठीक है, इनटू डेल्टा एक्स ट्रांसपोज, ठीक है। और फिर आपके पास एक टर्म आई थी जिसमें हेसियन आया था, और हमारे पास सॉरी so delta x transpose Hessian at x steric into delta x, ये थी हमारी जो फंक्शन की अप्रॉक्सीमेशन थी। तो अगर मैं x के अराउंड अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन करके देखूं तो मेरे पास जो है वो तीन टर्म्स होंगी, एक ये कांस्टेंट, एक आपके पास लीनियर टर्म, और ये तीसरी टर्म होगी जो कि आपको बता रही है सेकंड ऑर्डर कंट्रीब्यूशन इन अप्रॉक्सीमेटिंग एफ ऑफ एक्स अराउंड एक्स स्टेरिक। अब ये जो टर्म है, दिस टर्म इज लाइक दिस कनकेविटी, जो दूसरी टर्म है इट इज लाइक स्ट्रेट लाइन, पहली टर्म इज लाइक जो है वो एक कांस्टेंट, जो तीसरी टर्म आप अगर ऐड करेंगे दैट इज लाइक एक्स क्यूब, चौथी टर्म ऐड करेंगे एक्स फोर एंड सो ऑन, ठीक है। सो आवर हेसियन जो यहाँ पे थर्ड टर्म में आ रहा है, it directly tells us the concavity of our function around that point x steric. Okay ji, so now we have so that is it about gradient descent. तो आई विल ट्राई कि इस होमवर्क में जो इस से रिलेटेड होगा वी विल फर्दर एक्सप्लोर इट्स प्रॉपर्टीज एंड विल ट्राई टू अप्लाई इट फॉर अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एज वेल, ताकि वो जो कोडिंग शोडिंग वाला पहलू है वो भी आप लोग देखें इसके अराउंड। ओके, सो अभी तक हमने जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की है, वी सेड दैट कि वी आर कंसीडरिंग टाइप ऑफ फंक्शंस लाइक दिस आर्गुमेंट एफ ऑफ एक्स एंड वी ओनली टुक assumption on f of x there that it is a smooth function, means it is continuous and its derivatives exist. So इस domain में we have studied gradient descent. Now what if we further restrict our study to a subset of these functions? So now we have a special type of function which actually make our life very easier. So those are called convex functions. ठीक है? So convex functions, as I said, make our life much easier. But first, let's stand what is a convexity and what are convex functions. So again, our function is scalar function, as we are already considering. So f of x takes a vector from n-dimensional space and translates it into one-dimensional space, 1 cross 1. So when we can say that this function is convex? When can we say that this function is convex? So before going to that, we have seen in basic signals and systems, if our function is linear, what is the definition of a linear function? जो कि हम सब ने पढ़ी हुई है, और since we are almost all of us are electrical engineers, तो linearity की जो definition है वो ऐसे ही हमारे जहन में बैठी हुई है जैसे हम एडिशन ऑफ नंबर्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स हमारे जहन में बैठी हुई है। सो लिनियरिटी हमें क्या कहती है? लिनियरिटी ये कहती है कि if f of x is linear, then you take a constant alpha, one input x1 plus another constant beta, another input x2, ठीक है, additivity and homogeneity combined. So this is equal to alpha times f of x1 plus beta times f of x2, ठीक है। अगर हमारा फंक्शन
इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो व्हाट डू वी से कि हमारा फंक्शन क्या है, लीनियर है, राइट। नाउ convexity is generalization of this property, nothing else. So it is a form of sublinearity. कैसे, अब मैं आपके सामने जो है, आपने लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन देख लिया, अब इसी के सामने मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज लाइंग इनसाइड दिस डेफिनेशन. So we say that our f of x is convex. F of x is convex if and only if it follows the following property. F अल्फा की जगह मैं एक ले आता हूँ, we call it lambda. सेम स्केलर, वहां पे अल्फा कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे लैम्डा को मैं लिमिट कर दूंगा. x1 वैसे ही रखता हूँ, प्लस बीटा की जगह मैं ले आता हूँ 1 माइनस लैम्डा. ठीक है, x2. ठीक है, if I take two inputs x1 and x2, I combine it through a very special combination which we call convex combination, then my f of x is not only equal to but less than equal to. लीनियर में हम स्ट्रिक्ट इक्वालिटी देख रहे होते हैं, यहाँ पे हम इनइक्वालिटी देख रहे हैं. लेस देन इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ x2. That is the definition of convexity or convex function. Okay. But here we have defined it by taking lambda, which can be 0 and which can be between 0 and 1. ठीक है, तो ये लैम्डा के ऊपर एक हमने लिमिट लगा दी. क्यों लगाई है अभी मैं बताता हूँ. बट यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है हमने कन्वेक्सिटी की, इन ऑर्डर टू मेक एन इंट्यूटिव सेंस ऑफ इट, जस्ट ट्राई टू कंपेयर इट विद दिस लीनियरिटी थिंग, ताकि आपको ये जो डेफिनेशन है ये कुछ सेंस बनाए आपके दिमाग में और उसको आप याद रख सकें. So they are very close. So convexity generalizes linearity. That is why it is also called sublinearity. तो इक्वालिटी की जगह जो है वो एक इनइक्वालिटी आ गई है, और जो अल्फा और बीटा थे उनको हमने सिंपल एक ही कांस्टेंट लैम्डा से रिप्लेस कर दिया. अब ये तो थी लिनियरिटी के साथ इसकी एक क्या कहते हैं, एक रिलेशनशिप. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज this property convexity and when my function will be convex and when it will not be. So for that, suppose what I have an x, ठीक है, जो कि n dimensional vector है, लेकिन मैं उसको एक straight line में plot कर रहा हूँ. It could, here actually x is scalar, but let's keep it like this. Now I have 2 points, one is x1 and another is x2. So x1 is, let's suppose, somewhere here, and x2 is somewhere here. ठीक है. Then I have a third point. So third point is my x3, which is this combination of x1 and x2. ये पॉइंट किधर है इस लाइन के ऊपर? x1 से पहले है, x2 के बाद है, या इन दोनों के बीच में है? लैम्डा के ऊपर लिमिट आपको पता है, बिटवीन 0 and 1 है. ये पॉइंट किधर होगा? इसके एक्सट्रीम वैल्यू पे देख लें. लैम्डा की जो लैम्डा जब 0 होगा तो x3 विल बी इक्वल टू x2. ठीक है, और लैम्डा जब 1 होगा तो x3 विल बी इक्वल टू x1. ठीक है, तो x1 और x2 के बीच में कोई पॉइंट होगा. ये सॉरी, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा. सो दिस इज माय x3 पॉइंट. ठीक है, तो आप लैम्डा को अगर इंक्रीज करेंगे, तो लैम्डा को अगर आप 1 की तरफ लेके जाएंगे, सो व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1, x3 इज इक्वल टू x1. तो इस साइड पे लैम्डा इंक्रीज कर रहा है और इस साइड पे लैम्डा डिक्रीज कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन के आपने लैम्डा की वैल्यू क्या रखी हुई है. तो ये 3 पॉइंट्स आ गए. अभी हमने सिर्फ क्या देखा है, अपने फंक्शन का आर्गुमेंट देखा है. अब y एक्सिस पे है फंक्शन की वैल्यू.
So y axis पे हमारे पास है फंक्शन की वैल्यू. Suppose फंक्शन की वैल्यू is something like this. So x1 के ऊपर मेरे फंक्शन की वैल्यू होगी f of x1. x2 के ऊपर मेरे फंक्शन की वैल्यू होगी f of x2. और ये जो x3 है इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू होगी f of x3. ठीक है. तो लेकिन x3 आपका मूव कर रहा है. x3 आपका x1 से लेके x2 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो लैम्डा है उसकी वैल्यू क्या है. तो अब हमारे पास जो दूसरी चीज है जो राइट हैंड साइड पे है उसको जरा देखें. ये क्या है? ये वाली चीज विच इज लैम्डा टाइम्स f of x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स f of x2. ठीक है. जब लैम्डा 0 होगा तो ये वाली जो भी चीज है बेसिकली दिस विल बी अ लाइन सेगमेंट. ये वाली चीज होगी जब लैम्डा 0 होगा तो हम fx2 के ऊपर होंगे यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर. और जब लैम्डा 1 होगा तो हम fx1 के ऊपर होंगे यहाँ पे. और जब लैम्डा 0 और 1 के बीच में होगा तो हम एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. ठीक है. अब जो कन्वेक्सिटी है वो सिंपली ये कह रही है कि जो आपका fx3 है, देखें fx3 भी मूव कर रहा था, लैम्डा के मूव होने थे. और जो राइट हैंड साइड हमारे पास आई है दिस इज राइट हैंड साइड. ये भी चेंज हो रही है लैम्डा के मूव करने से. तो लैम्डा की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो आप सोच सकते हैं अपने जहन में वो लें. तो आपका फंक्शन कन्वेक्स होगा अगर जो फंक्शन की वैल्यू है fx3, ये वाला पॉइंट जो है ये fx3 है. फंक्शन की वैल्यू शुड ऑलवेज बी बिलो देन द स्लोप रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन. तो मैं राइट हैंड साइड को मैं स्लोप कह रहा हूं. ठीक है. तो फंक्शन की जो वैल्यू है इट शुड ऑलवेज बी बिलो द स्लोप व्हिच जॉइंस or the straight line which joins points fx1 and fx2. So if this happens for every x1 and x2 जो कि f की डोमेन में है then your function is convex. ठीक है. अब now this is a property which if अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो हाईली इंट्यूटिव है, अगर हाईली नॉन इंट्यूटिव है, लेकिन अगर वैसे समझें तो हाईली इंट्यूटिव है. तो इसकी जो इंट्यूशन है इट इज समथिंग लाइक दिस कि अगर जो है आपके पास एक कोई फंक्शन आता है जो इस तरह का है समथिंग लाइक दिस. तो आप इसके ऊपर अगर कोई ऐसे दो पॉइंट ढूंढ लेते हैं फॉर एग्जांपल ये x1 और x2, तो जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर चली गई है. यहाँ पे देखें ये फंक्शन की वैल्यू इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर चली गई है तो ये फंक्शन नॉन कन्वेक्स होगा. ठीक है. तो आपके फंक्शन की वैल्यू हमेशा जो है वो क्या होनी चाहिए, जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है उससे हमेशा नीचे होने चाहिए. इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा अगर आप अपने जहन में सोचें तो वो ये है कि अगर आप जो है वो अभी हम देख के आए हैं ग्रेडियंट डिसेंट में इस पॉइंट से शुरू हुए हैं और नीचे आ रहे हैं, स्टेप्स लेते आ रहे हैं. आप k से शुरू हुए हैं, फिर आप k+1 पे आ गए, k+2 पे आ गए एंड सो ऑन. जस्ट इमेजिन कि एक आपके पास ये पाथ है, एक फंक्शन जिसके ऊपर आ रहे हैं और दूसरा फंक्शन है जिसमें आप ऐसे आ रहे हैं. एक कन्वेक्स है दूसरा नॉन कन्वेक्स है. जब आप इधर आएंगे तो आप आके फंस जाएंगे यहाँ पे. ठीक है. अब आप यहाँ पे आके फंस जाएंगे क्योंकि डिसेंट डायरेक्शन अब आपको जो एक्चुअल फंक्शन जिधर डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है उसकी वैल्यू नहीं बता रही. तो आपके जो लोकल मिनिमा है वो प्रॉब्लम काज करेंगे. ठीक है. सो इट इज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी that we are able to define what we call convex optimization. So all of the convex optimization revolves around these 2 points that I'm going to tell you in the form of a theorem.
So it says that if your f of x is convex, if f of x is convex, defined on a set which is also convex, so let's not go in that details, and your x steric is a local minima, is a local minimum point of f of x. ठीक है, then here is a beauty. Number one, this point is also a global minimum. ठीक है, this point is also a global minimum of f over same set which you are considering. And number two, so पहला जो पार्ट है वो सिर्फ ये बता रहा है कि आपका x जो है वो ग्लोबल, अगर लोकल मिनिमा है तो ग्लोबल मिनिमा भी होगा, उसकी यूनिकनेस पे कोई बात नहीं कर रहा. नंबर टू, x will also be a unique global minima, but that requires an additional constraint if and only if your f of x is strictly convex. ठीक है, अब strictly convex का मतलब ये है कि your function is like this. Less than, there is no equality here. It's strictly less than lambda times fx1 plus 1 minus lambda times fx2. ठीक है, so that is the beauty of convex function. तो अगर strictly convex नहीं होगा तो वो unique नहीं होगा, तो वो इस तरह की कोई सिचुएशन होगी. फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो बहुत सारे ग्लोबल मिनिमा होंगे जिन जो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई हुई है, लेकिन अगर ये स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है तो आपका फंक्शन बड़ा ही वेल डिफाइंड होगा around that global and local minima such that there is one unique local or global minima which exists. जी ईशा. Sir, there were two questions by now. Initially, the pehla question tha, that was regarding ke how would we actually choose x1 and x2, because the example that you gave on the previous page, if x2 was chosen to be somewhere closer to x1 and it didn't have that peak that you showed, the one that you've circled, तो फिर our hypothesis would have been different. नहीं Isn't नहीं, it? किसकी बात कर रही हैं, इस चीज की बात कर रही हैं या ऊपर वाली बड़ी एग्जांपल की बात कर रही हैं? सर ये जो आपने नीचे एग्जांपल बताई है कि अगर इसके अंदर फॉर इंस्टेंस हम x2 को समवेयर रिलेटिवली क्लोजर टू x, ये जो आपने खासतौर से राइट साइड पे डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ द पे वन, हाँ जी ये वाली. अब अगर इसके अंदर हमारा x1 और x2 जो आपने दोनों पॉइंट्स लिए हैं, if x2 was before this jump that you've shown, the one that you've circled, तो फिर हमारे पास फंक्शन लेस देन ही आता and we wouldn't हाँ have ठीक known. है, ठीक है, सही कह रही हैं, लेकिन वो ग्लोबली कन्वेक्स नहीं है, फिर वो लोकली कन्वेक्स है. ठीक है, Okay, तो सर फिर ग्लोबली कन्वेक्स का मतलब है कि फॉर ऑल द पॉसिबल रेंज ऑफ एक्स दैट यू कैन कंसीडर. तो हो सकता है कि आपका जो हो सकता है आपका ग्लोबल मिनिमा इधर पड़ा हो. ठीक है, अब नाउ दिस फंक्शन इज नॉट कन्वेक्स, तो अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आके फंस जाएंगे. ठीक है, लेकिन अगर आपका फंक्शन कन्वेक्स है तो फिर ये चीज होगी ही नहीं.
इस तरह के जंप्स नहीं होंगे फंक्शन में, ठीक है, फिर आप जो है वो कन्वर्ज ही जाके अपने ग्लोबल मिनिमा पे करेंगे। तो लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा दे एक्चुअली कोइंसाइड। सर व्हाट आई मीन टू आस्क इज कि अब अगर फॉर इंस्टेंस मैं अपने क्वेश्चन को इस चीज़ के हिसाब से मोल्ड करूं जो आपने अभी कही है, तो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं x1 चूज ही ऐसा करूं जो उस लोकल मिनिमा से आगे हो, तो देखिए फिर तो आपका मुझे गोल क्या है, आप कन्वेक्सिटी की डेफिनेशन समझना चाह रही हैं या आप उसको मिनिमाइज करना चाह रही हैं? पहले मैं मुझे समझना ये चाह रही हूँ कि बताएं। हम x1 और x2 कैसे चूज करेंगे। x1 और x2 और जस्ट टू डिफाइन फंक्शन कि वो किस तरह का है, ठीक है। x1 और x2 आप उसकी पूरी रेंज के ऊपर चूज करेंगे। मसलन आपने कहा कि मेरा फंक्शन जो है वो इस रेंज के ऊपर मैं देख रहा हूँ पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, तो ओके आप इस पूरी रेंज के ऊपर x1 और x2 देखेंगे, एक छोटी सी जगह के ऊपर नहीं देखेंगे, तो ग्लोबली देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि चाहिए अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है फंक्शन, तो दैट इज योर रेंज। ओके और दूसरा सवाल। सर इफ यू कुड गो टू द नेक्स्ट पेज ताकि मुझे याद आ जाए कि दूसरा क्या था सवाल। जी या सर इसके अंदर ये था कि इफ वी आर सेइंग दैट इन स्ट्रिक्टली कन्वेक्स सिचुएशंस इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन दैट, तो फिर हाउ आर वी केटरिंग द पॉइंट्स x1 एंड x2 देमसेल्फ, बिकॉज उस पे तो बराबर होगा नहीं। केटरिंग का क्या मतलब है? As in, isn't it bound to actually happen that, uh, especially when we've actually linked it to linearity, कि f of x1 would still be f of x1 at that point and f of x2 will still be f of x2 at that point. जिस तरह आपने अभी बाउंड्री कंडीशंस डाल के हमें दिखाया भी है कि it turns out to be x1 and x2 at those points and which is why x3 lies between them. तो जब हम जी स्ट्रिक्टली कन्वेक्स की उसके अंदर देख रहे हैं, तो isn't it that at those very points it would still be equal to that? नहीं, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स और कन्वेक्स में डिफरेंस देख लें। पहले जो है स्ट्रिक्टली कन्वेक्स देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली कन्वेक्स का मतलब ये है, मसलन ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली कन्वेक्स मैंने प्लॉट किया हुआ है कि आप x1 और x2 कोई से भी चूज कर लें, जो लाइन सेगमेंट इनको ज्वाइन करेगा वो हमेशा आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब फंक्शन की वैल्यू ये वाली चीज है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ देखें, ये वाली चीज है फंक्शन की वैल्यू। इट विल ऑलवेज बी लेस देन, इक्वालिटी कभी भी नहीं आएगी। लेकिन तो अगर सर फंक्शन ऐसा बेसिकली हो जाए, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दिया करें, अगर फंक्शन ऐसा हो जाए, ठीक है, तो अब अगर आप x1 और x2 ये चूज कर लें, तो अब इनइक्वालिटी नहीं है। जब जब स्ट्रेट लाइन आप लगाएंगे इन दोनों के बीच में, तो फंक्शन की वैल्यू और वो स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली इक्वल हो गए हैं, ओके ठीक है। दैट इज कन्वेक्सिटी बट नॉट स्ट्रिक्टली कन्वेक्स। अब इस केस में आपके यूनिकनेस लॉस लॉस हो जाएगी, विच इज अंडरस्टैंडेबल, कि आपके ये जितने पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे आपके मिनिमाइजर्स हैं, इनमें से कोई एक चूज कर लें, यू आर डूइंग इक्वली गुड, राइट ओके थैंक यू सर। ठीक है। सो दिस वन इज convex but not strictly convex, this one is strictly convex, that is a difference। जी मोहसिन आपका सवाल था। सर ये फर्स्ट पार्ट मुझे इमीडिएटली अपेरेंट नहीं हो रहा। कौन सा फर्स्ट पार्ट? सर ग्लोबल और ग्लोबल मिनिमम। हाँ, so the best thing is go through its proof. The next best thing is look at it intuitively। जैसे मैंने अभी अभी इसी की डिस्कशन चल रही थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है वो कोई लोकल मिनिमा है और फिर जो है आपका कहीं पे ग्लोबल मिनिमा पड़ा हुआ है इस तरीके से, तो अब नाउ दिस फंक्शन जो कि मैंने अभी प्लॉट किया है ये वाला, दिस इज नॉन कन्वेक्स फंक्शन। तो आप जब ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू यहाँ से चलेंगे, इधर आएंगे, तो आप यहाँ पे आके फंस जाएंगे। अगर आपने स्टेप साइज छोटा सा चूज किया हुआ है तो आप कहेंगे कि ये मेरा ऑप्टिमल पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर ये फंक्शन कन्वेक्स होता तो फिर इस तरह की चीजें ना आती आपके फंक्शन में, उसकी शेप इस तरह की ना आती, तो फिर आप डायरेक्टली ग्लोबल मिनिमा पे जाके कन्वर्ज करते। दैट इज द बेस्ट इंट्यूशन दैट वन कैन डेवलप थ्रू दिस डेफिनेशन। बाकी इसका प्रूफ वैसे मैथमेटिकल है। राइट सर। ओके जी, सो नाउ
let's see how to prove whether any function is convex or not. So we have, we will see that we will encounter a number of functions, but we should see how to prove whether a given function is convex or not. So let's start with an affine function, which is very close to linear. So A transpose X plus B. Sorry, this B is scalar. This is not vector. So इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि अगर A जो है वो आपके पास है, so A could be for example A1, A2, or X could be then X1, X2. So f of X will be A1, X1 plus A2, X2. यहाँ तक linear है, but when you add a bias, this is affine function. ठीक है, linearity को पहले affine function में generalize करते हैं, फिर convex जो है उसको मज़ीद further generalize कर देता है. Now, all of such functions, all of such types, they can be represented by this general formulation A transpose X plus B. So let's see whether this function is convex or not. So we will take उसी तरीके से mathematically. So we will consider the definition of convex functions. So f of lambda times x1 plus 1 minus lambda times x2. ठीक है, इसको ओपन करें. So you have f of so इसकी जरूरत नहीं है. So you have, अब ये जो अंदर सारी चीज है, this is like this x जो कि यहाँ पे था. So this will become A transpose into all of this thing, lambda x1 plus 1 minus lambda x2. आपका फंक्शन यही करता है ना कि उसके आर्गुमेंट में जो भी चीज आए उसको A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेगा और उसमें B ऐड कर देगा. ठीक है, given f of x does something like this. Okay, now let's see what is this equal to. So this is equal to, अब ये simple scalars और vectors और matrices की चीजें आ जाएंगी. So I can take lambda outside. This will become A transpose x1 plus 1 minus lambda outside because this is scalar. Then you have A transpose into x2. ठीक है, plus B plus B. Okay, now let's do a trick. So the trick is we add two terms here. So one is plus lambda B, and then we also subtract it, minus lambda B. ठीक है, हम इसमें lambda B ऐड किया, lambda B subtract कर लिया. एक स्केलर ऐड और subtract करने से आपकी इक्वेशन वैसे ही है. Now we can arrange it like this. So we have lambda times lambda common ले लो. So you have A transpose x1 plus B. ठीक है, plus 1 minus lambda common ले. You have A transpose x2 plus B. तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इस B के साथ 1 माइनस लैम्डा आ रहा था. ठीक है, तो उसको मैंने कंबाइन कर लिया और फिर एक मेरे पास क्या हो जाएगा, नहीं ठीक है, यहाँ तक ठीक है. So that is exactly equal to, this one will become f of x1 lambda times plus 1 minus lambda times, this will become f of x2. बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे जैसे हम एक सिस्टम की लिनियरिटी प्रूव करते थे
उसी तरीके से आप किसी फंक्शन की कन्वेक्सिटी को प्रूव कर सकते हैं. सो दिस इज कन्वेक्स फंक्शन, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली कन्वेक्स फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप इक्वालिटी के साथ आ रहे हैं, इनइक्वालिटी के साथ नहीं आ रहे. एक और फंक्शन देखते हैं. सो वी हैव, लेट्स सपोज f of x equal to this function. What do we call this function? So this is norm function. ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं, L2 norm, which is square of individual components of x and then square root at the end, addition and then add at the end square root. So let's see whether this norm function is convex or not. तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, f of lambda times एक x1 लेंगे प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एक x2 लेंगे. ठीक है, और फिर देखेंगे कि ये क्या बन रहा है. Now all of this is argument of your function. So this will be equal to norm of lambda x1 plus 1 minus lambda x2. ठीक है, तो ये आपका नॉर्म फंक्शन हमने जो भी उसका आर्गुमेंट था उसके ऊपर लगा दिया. अब दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं. ठीक है, और फिर आप उसकी नॉर्म ले रहे हैं. सो दिस इज, यहाँ पे हम जो है वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. सो यू हैव, जो आपकी नॉर्म की प्रॉपर्टी है, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स x2. ठीक है, so then what you do, you take this lambda outside, since lambda is positive, lambda negative नहीं है तो इसलिए इक्वालिटी आएगी अब यहाँ पे. नहीं तो अगर lambda नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके बाहर आते. नॉर्म फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी, रिमेंबर देम. तो lambda आप बाहर लेके आ रहे हैं क्योंकि lambda बिटवीन 0 and 1 रह सकता है. प्लस similarly 1 minus lambda भी between 0 and 1 रह सकता है. So this will become x2. तो norm जितनी भी हैं वो सारी L2 norm है. So this is clearly equal to lambda times fx1 plus 1 minus lambda times fx2. ठीक है, अब यहाँ पे inequality आ गई थी, फिर उस inequality के बाद equality है. So at the end your function is, आपका फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू है. सो वी हैव दिस नॉर्म फंक्शन आल्सो अ कन्वेक्स फंक्शन. वी विल सी कि अगर मैं इस L2 नॉर्म की जगह कोई और नॉर्म डाल दूं, फॉर एग्जांपल L0 नॉर्म डाल दूं, जिसको हम डिफाइन करेंगे अगले लेक्चर में, व्हाट इज L0 नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, तो वो कन्वेक्स नहीं रहती फिर. ठीक है, इसी तरीके से जो L1 नॉर्म है वो भी आपके पास जो है वो कन्वेक्स रहती है. एंड दैट इज द ब्यूटी, जिसको हम यूटिलाइज करके we will be solving L0 norm problem in next lecture. So at the end, जी शोएब. सर एक कंफ्यूजन थी. सो हमारे पास इक्विवेलेंट प्रॉब्लम्स वो होती हैं इफ वी कैन ऑब्टेन वन फ्रॉम द अदर. सो अगर मैं फॉर इंस्टेंस एक फंक्शन f of x है, उसका इक्विवेलेंट g of x है. If I can prove that g of x is convex, I cannot say that f of x will also be convex, isn't it? इस सारे डिस्कशन से क्या लेना देना है, बाकी बच्चे जो है वो सोच रहे होंगे, पहले मुझे बताओ. वो सर ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस मेरे पास कोई मुश्किल एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया होता और मैं उसका कोई आसान एक्सप्रेशन लिया था इक्विवेलेंट, अगर मैं दूसरे को इक्विवेलेंट को प्रूफ कर देता कि कॉन्वेक्स है, तो मेरे पास आसान वाला भी फिर पता चल जाता कि कॉन्वेक्स है या नहीं. हाँ नहीं, मेरे ख्याल से वो लेट्स नॉट गो इनटू दैट थिंग. आप शायद डुअलिटी की बात कर रहे हैं. तो लेट्स कीप आवरसेल्फ टू व्हाट इज हियर, कि आप जो है वो कन्वेक्सिटी को प्रूव कैसे कर सकते हैं. ठीक है, यूजिंग जैसे हमने वो जो लिनियरिटी वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की हुई है
बिल्कुल उसी तरीके से आप एक फंक्शन की कन्वेक्सिटी को भी प्रूव कर सकते हैं. Okay, so now let's consider a very unique function that is going to help us in understanding कि हम ये optimization के concept least square problem पे कैसे लगाएं. We have quadratic function. Now, since we know the definition of convexity, we can use this definition to apply for a very few functions जिनके लिए जो है वो एक closed solution exist करता है. So quadratic functions are functions of this type. So our f of x is equal to x transpose a matrix G x plus 2b transpose x plus c scalar. ठीक है, यहाँ पे जो G है, this is square matrix n cross n symmetric matrix actually. So all of the functions which can be written in this general form are called quadratic functions. G जो है आपके पास एक symmetric matrix है, B जो है वो कोई भी वेक्टर हो सकता है, n cross 1 का, C scalar है, और we are interested in finding an x which minimizes these functions. ठीक है, this is our goal. Argument हमने जो है एक ऐसा x find करना है जो कि इस तरह के फंक्शंस को, जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, उनको मिनिमाइज कर देगा. Okay, the tool that we have in our hand, for example, if I take gradient of this f, I can compute its gradient in closed form. So if you do that, you will get 2gx plus 2b. Gradient compute करना मैंने सिखाया हुआ है. जो f of x given है, उसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x1, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड सो ऑन. ठीक है, अब ये ऊपर वाले से कैसे आया है, ट्राई टू डू दैट. जो पहली चीज है क्वाड्रेटिक फॉर्म, उसको समेशन में खोलें, उसको समझें. दूसरी चीज इनर प्रोडक्ट है, वैसे खुल जाएगी. टेक इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड देन ट्राई टू अगेन कंपैक्ट थिंग्स इनटू दिस फार्मूला 2gx plus 2b. Similarly, Hessian, we can also compute its Hessian, which turns out to be, आपने इसका delta fx का एक दफा फिर डेरिवेटिव लेना है, so that will be 2g. Gradient vector होता है, so this one is n cross 1. Hessian matrix होता है. ठीक है, ये पहले लेक्चर में मैंने इनकी डेफिनेशंस बताई थी आप लोगों को. So what are the stationary points of this quadratic function? So stationary points are all those points for which my gradient is equal to 0. So this will give me all x which are stationary points. ठीक है, so if I substitute 2gx plus 2b equal to 0, then what do we get? We get points of this form, gx equal to minus b. So all stationary points of this quadratic function will satisfy this relationship, gx equal to minus b. ठीक है, अभी हम यूनिकनेस की बात नहीं कर रहे, अभी हमने कन्वेक्सिटी को कहीं पे नहीं लाए, सिंपली हमने वो जो पहले जैसे हम देख रहे थे, हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे, उस तरीके से देखा. Now let's bring in convexity. So let's ask a question whether this quadratic function, let's say this is equation 1, whether 1 is convex or not.
ठीक है. So again we can write two theorems. So theorem 1 is, so ये वाला 1 यूज कर लेते हैं. So it says that this quadratic function f of x is convex. Is convex if and only if this G matrix is positive semi-definite. ठीक है. नाउ यू कैन प्रूव इट. आपको पता है कि कैसे आपने इसकी कन्वेक्सिटी को प्रूव करना है. एट द एंड एक कंडीशन बचेगी जो कि जी की आइगन वैल्यूज पर डिपेंड कर रही होगी. सो इफ दोज आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव लार्जर देन इक्वल टू 0, तो आपका जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, सॉरी मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा और ये एफ ऑफ एक्स कन्वेक्स होगा. ठीक है. अगर जी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो इट मींस कि all of your stationary points gx equal to minus b वाले जो points हैं, what you can do, what can we say about these points, whether they are our global minima or not. दोबारा सुने. If f of x is convex, sorry, f of x is convex if and only if g is positive definite, positive semi-definite. And we know that all the stationary points of this form, are actually candidates for local minima. Of course, local minima से ही कोई एक global minima होगा. अब फंक्शन हमारा कन्वेक्स है अगर g पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो. अगर g पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, इट मींस के आई विल फाइंड एन x optimal, will find an x optimal which will be minus g inverse into b. Minus g inverse into b. यूनिकनेस की बात नहीं कर रहे. कन्वेक्स है, जी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, आपका सोल्यूशन ये होगा. यूनिक कब होगा, कोई मुझे बता सकता है यूनिक कब होगा? उसके लिए जी के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए? बेसिकली हमने पढ़ लिया हुआ है. मैं वो थ्योरम 2 लिखने से पहले आपसे पूछना चाह रहा हूँ. आप हेसियन देखें, हेसियन इज एग्जैक्टली इक्वल टू जी. तो जो हमारी सेकंड ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन थी वो बिल्कुल यही थी कि आपका हेसियन पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होना चाहिए या हेसियन पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए. So that is the part of theorem 2, that f of x is strictly convex if and only if g is positive definite. In that case, your x steric equal to minus g inverse b will be unique. ठीक है. अगर आप जो ऑप्टिमाइजेशन के नोट्स हैं उसमें जाएं तो हमने एक सेकंड ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी जो कि हेसियन को हमने यूज करते हुए ये वाला हेसियन हमने कंप्यूट किया होगा. सो हेसियन इज एग्जैक्टली इक्वल टू जी. सो इसमें नई बात सिर्फ ये है कि आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये सिर्फ उसी वक्त कन्वेक्स होगा जब आपका हेसियन पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा. ठीक है. और स्ट्रिक्टली कन्वेक्स होगा जब आपका हेसियन जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा. बाकी कन्वेक्सिटी की जो हमने थ्योरम पढ़े हैं उनकी वजह से आपका सोल्यूशन पहले केस में ग्लोबल मिनिमा बन रहा है. ठीक है. सो दिस इज ग्लोबल मिनिमा. और दूसरे केस में वो ग्लोबल मिनिमा यूनिक भी बन रहा है. अभी जो दो थ्योरम हम करके आए हैं.
ओके अब ये gx इज इक्वल टू माइनस बी वाली चीज को जहन में रखें एंड लेट्स ट्राई टू रिविजिट आवर सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू y. So we have solution of ax is equal to y. In a case, so a हमारे पास है, remember m cross n. In a case when m is larger than n, means a is tall. A is a tall matrix. Let's suppose A is full rank. So let's suppose rank of A is equal to R is equal to, अगर full rank है तो rank क्या होगा, n के equal होगा, which will be less than m. In these scenarios, we know that no exact x exist which satisfy ax is equal to y. ठीक है, जब भी आपका मैट्रिक्स टॉल होगा, regardless of anything, there will be no exact solution. कोई exact solution exist नहीं करेगा. So we say that we can find an approximate solution, x steric, which is our least square approximate solution now, which minimizes some error. So which minimizes some error function. ठीक है, और हमें पता है कि वो एरर क्या थी. वो एरर हमारे पास, रिमेंबर, जो हमने पीछे सारा कुछ करके आए हैं, वो एरर आपका, जो आप एक गिवन y को जब आप प्रोजेक्ट कर लेते थे अपनी रेंज स्पेस के ऊपर, तो उस y हैट का और आपके गिवन y का डिफरेंस एरर था. उसी एरर की ही बात हो रही है. सो वी से दैट लेट्स डिफाइन अ फंक्शन आर्गुमेंट f of x equal to norm of E. Let's take L2 norm and let's try to find an x which minimizes this error. ठीक है. Now the question is, what is my error? So remember we said that we have ax is equal to y. So y is somewhere here. Y का एक component इधर पड़ा है. So this component of y is actually equal to ax. So this component is E. So E is equal to ax minus y. ठीक है. So here my error is equal to ax minus y. So my optimization problem becomes, we have to minimize a new function which is now norm of ax minus y L2 norm. We have to find an x which gives us the minimum of this function. कैसे करेंगे? Any idea? We know that this function is convex. अभी हम प्रूव करके आए हैं कि किसी भी वेक्टर की जो L2 norm है, that is convex function. ठीक है. So let's try to write this function. So we have f of x equal to ax minus y 2. Norm की definition लगाएं.
So we have ax minus y transpose into ax minus y. ठीक है, तो मैं सिंपली इसको जो है वो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर भी यूज कर लेता हूँ, ताकि वो जो स्क्वायर रूट वाली चीज है वो खत्म हो जाए। तो आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी टर्म में इसकी डेफिनेशन आ गई। Now simply you can multiply these vectors and matrices. So in the first step, when you multiply, you will get x transpose A transpose minus y transpose into ax minus y. In next step, let's multiply them. So you will get x transpose A transpose A into x minus, मैं गलती करूं तो मुझे बताइएगा, y transpose ax, फिर हो जाएगा माइनस x ट्रांसपोज A ट्रांसपोज y, और आखिरी टर्म आ जाएगी y ट्रांसपोज y। ठीक है, सिंपल आपने दोनों जो एक्सप्रेशंस थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस क्वांटिटी को देखें और इस क्वांटिटी को देखें। What is its dimension? Its dimension is 1 क्रॉस 1। इसका भी dimension 1 क्रॉस 1 है, स्केलर है। यहाँ पे जो स्केलर है y ट्रांसपोज ax में, उसी का ट्रांसपोज यहाँ पे आया हुआ है। मैं y ट्रांसपोज ax का ट्रांसपोज लूं तो क्या बन जाएगा, x ट्रांसपोज a ट्रांसपोज y। ठीक है, तो एक स्केलर का आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, राइट। तो 2 का ट्रांसपोज क्या होगा 2, -2 का ट्रांसपोज क्या होगा -2। सो द ट्रांसपोज ऑफ ए स्केलर इज स्टिल द सेम स्केलर। तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ, ये दो टर्म कंबाइन हो जाएंगे, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है। ठीक है, इन दोनों में से मैं एक रख लेता हूँ, तो मेरे पास अब 3 टर्म्स बच जाएंगी, पहली, आखिरी और इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, so that we do on next page. So now we have f of x equal to x transpose A transpose AX minus y transpose AX, और फिर इसी का ही आगे ट्रांसपोज है, सो माइनस y ट्रांसपोज AX होल ट्रांसपोज, और फिर आखिरी टर्म में मेरे पास y ट्रांसपोज y। So in next step, I can write it as f of x equal to x transpose A transpose AX minus 2 times y transpose AX plus y transpose y। जो दो स्केलर थे उनको मैंने कंबाइन कर दिया। Now let's compare it with जो अभी हम देख के आए हैं अपने क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में था x ट्रांसपोज gx माइनस 2b ट्रांसपोज x प्लस c, ये था हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख के आए हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन एज अ स्पेशल केस ऑफ कन्वेक्स फंक्शन। तो g मेरे पास है a ट्रांसपोज a, ठीक हो गया। b क्या है, b इज इक्वल टू a ट्रांसपोज y, दिस इज b ट्रांसपोज, तो b हो जाएगा a ट्रांसपोज y, so this is b transpose। now अब हमें पता है कि ये वाला जो फंक्शन है, दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन और दिस गिवन फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, this is convex if g is positive semi-definite, if g is positive semi-definite। so g here is positive semi-definite because g का जो यहाँ पे रैंक बन रहा है,
रैंक ऑफ जी क्या बन रहा है, n बन रहा है, क्योंकि ए को हमने फुल रैंक अज्यूम किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जी फुल रैंक है। फुल रैंक मैट्रिसेस आर ऑलवेज पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिसेस। So now we have our solution. So our all stationary points will be of this form, equal to minus b. So एक शायद गलती हो गई है, वहां पे हमने ये हमने प्लस के साथ किया हुआ है, ये वाली चीज क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो b इज एक्चुअली यहाँ पे माइनस ए ट्रांसपोज वाई, कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला नेगेटिव आ रहा है। So gx equal to minus b. So what is your solution now? Solution is g inverse minus g inverse into b. b वाला माइनस इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, एंड यू आर एक्चुअली लेफ्ट विद g की जगह उसका एक्सप्रेशन डालें, b की जगह उसका एक्सप्रेशन डालें, एंड यू हैव योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, वही चीज जो हम स्पेसेस से हमने डिराइव की थी। सो एक्स स्टेरिक is equal to a pseudo inverse into y। एग्जैक्टली सेम चीज आई है जिसको हमने इतनी ज्यादा मैथमेटिक्स को समझने के बाद हमने उसको निकाली है, कि वो जो ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारे लीस्ट स्क्वायर का। तो इसमें we are sure that we are actually minimizing this error, L2 norm of this error, norm square actually। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन है, दिस इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन। लीस्ट स्क्वायर इज एक्चुअली जब शुरू में प्रपोज हुआ था तो इट वाज लीस्ट एरर स्क्वायर। इसका जो नाम था दैट वाज लीस्ट एरर स्क्वायर ओनली ड्यू टू दिस क्वांटिटी। देखिए इसको मैं ओपन करता हूं तो एरर का पहला कंपोनेंट स्क्वायर्ड प्लस एरर का दूसरा कंपोनेंट स्क्वायर्ड प्लस सो ऑन एंड एरर का nth कंपोनेंट स्क्वायर्ड, और अगर मैं स्क्वायर ले लूंगा तो स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, राइट। सो इसका नाम यहां से निकाला गया था लीस्ट एरर स्क्वायर्ड मेथड। लेकिन वो चूंकि इतना लंबा हो जाता था तो वो जो एरर था वो उसके अंदर ही जम हो गया, एंड नाउ दिस मेथड इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। तो ये जो चीज है लीस्ट स्क्वायर या लीस्ट एरर स्क्वायर सॉल्यूशन, दिस लाइज एट द हार्ट ऑफ एवरी एल्गोरिथम इन सिग्नल प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जो भी आप सोच सकते हैं उसके दिल में ये चीज बैठी हुई है। इट इज सो इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम। हम इसको देखेंगे कि जब हम लीनियर रिग्रेशन करेंगे तो लीनियर रिग्रेशन इज नथिंग बट सेम थिंग, जिसमें आप जो है वो एरर वेक्टर डिफाइन करके उसकी L2 नॉर्म को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हमने इस लीस्ट स्क्वायर मेथड को दो डिफरेंट तरीके से देख लिया है। एक फ्रॉम वेक्टर स्पेसेस जो कि ज्योमेट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरा यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव जो कि आपका कैलकुलस का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें आपने ग्रेडियंट्स को यूज किया, जिसमें आपने जो है वो जेनेरिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को समझ के फिर आप इस काबिल हुए हैं कि नाउ यू आर एबल टू अप्रिशिएट कि हाउ यू आर गोइंग टू मिनिमाइज दिस एरर फंक्शन। So I will stop here. If you have question, you can ask. Otherwise, we'll continue from here. Next rest thing is very interesting. तो we will continue on Wednesday, और Wednesday को आपका क्विज भी होगा। Just keep in mind, क्विज आपका जो होमवर्क 2 है उसी में से होगा। I will try के हसन जो है वो कल आप लोगों का शाम को कोई स्लॉट बता के आप लोगों का ट्यूटोरियल भी एक रख ले होमवर्क 2 से रिलेटेड, ताकि अगर कोई मसले रह गए हुए हैं होमवर्क 2 की अंडरस्टैंडिंग में तो हम उसको भी कवर कर लें। So that is it from my side.